A very warm good afternoon to one and all, and a warm welcome to our dignitaries, Dr. R.J. Lalwani sir, our principal ma'am, Dean Academics, Dean Research and Development, Dean Student Welfare, Dean Administration, esteemed faculty members, and dear alumni. It fills our heart with immense joy and excitement to have you all here today for this remarkable event of Alumni Meet. Alumni Meet 2024 is even more special because this year we are witnessing the Institute's Silver Jubilee, completion of 25 successful years of Institute of Engineering and Science under the guidance of our respected principal, heads of departments, senior professors, and mentors. Today, we embark on this 25 years journey of our institute along with our guests and alumni with nostalgia, inspiration, and togetherness. To start with, I request all the dignitaries to come forward for lamp lighting. Thank you all. May I now request Honorable Principal Ma'am, Dr. A.G. Kothari Sir, Professor Praveen Patel Sir, and Professor Arvind Upadhyay Sir to kindly take your seats on the stage. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. The success of any educational institute is determined by the impact it creates in young minds. These are the minds that will one day grow to become the pioneers of this generation. To answer their questions of what, why, and how is proof of the fact that learning is a lifelong process, and to facilitate such inquisitive thought, the need for worthy and capable practitioners, academicians, and teachers is an absolute necessity. IPS Academy, Institute of Engineering and Science, is one such institution in central India that has grown from strength to strength in the past 25 years since its inception. The institute's greatest accomplishment is to see its students ride the road of not only much deserved success, but to see them exercise profound wisdom in their actions, maintaining clarity of thought, and feel a deep-seated urge to change the world. In these 25 years, the Institute has also gone through loads of hardships, ups and downs. The employees have given their hard work and numerous sacrifices. Management has offered various opportunities, and then upon these pillars stand high IPS Academy, the Institute of Engineering and Science. Today, we offer UG and PG courses in almost all branches of engineering, NBA accredited, autonomous institute, flying even more high to achieve other colors in our umbrella of achievements. With constant support and dedication of our management and principal, we have also launched another campus of engineering in Indore. Now I request Professor Praveen Patel Sir to kindly come on the dais to welcome our esteemed alumni. कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्थान के प्रथम निर्देशक महोदय डॉक्टर आरजे लालवानी सर, वर्तमान में हमारी प्रधान आचार्य महोदया डॉक्टर अर्चना कीर्ति चौधरी मैडम, हमारे इंस्टीट्यूट के सलाहकार डॉक्टर ए.जी. कोठारी सर, कार्यक्रम में उपस्थित और आज जिन लोगों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, मेरे सीनियर प्रथम बैच पास आउट 2003 पास आउट देवी अहिल्या की पहली बैच के पास आउट मेरे सीनियर्स,
इस इंस्टीट्यूट के एल्यूमिना एसोसिएशन के जिम्मेदारी एक इंस्टीट्यूट के ही छात्र को दी जाती है। इसी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ हूँ। तो मेरे हृदय के अंतःकरण से और आईपीएस के प्रत्येक सदस्य जो डायस पे हैं, जो ऑफ डायस भी बैठे हुए हैं, उनकी सभी की तरफ से आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आज 25 वर्ष हो गए हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारी संस्था को, और 25 वर्ष में क्या बदलता है थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। 25 वर्ष में पहले सन 1999 में, सन 2000 में आशीष जैन सर आए थे और 2000 में मैं आया था। सर भूल गए, मुझे याद है कि यहाँ ग्रीनलैंड के ऊपर सर ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं, सन 2000 में किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिया होगा। तो 1999 से लगा के 2024 तक जब 25 साल पूरे होते हैं तो एक गांव का लड़का इतनी बड़ी संस्था में आता है। उस समय मध्य प्रदेश में केवल 13 ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे। हम सबसे पहले आईपीएस एकेडमी और उसके बाद वैष्णव, ये 2 ही प्राइवेट संस्थान थे जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी थी। तो बात करते हैं 25 साल के अंतराल की। एक गांव का लड़का आता है जिसको शायद सीधे से हिंदी बोलते भी नहीं आती, क्योंकि मालवी से रहता है, वो मालवी बैकग्राउंड से होता है। जब वो यहाँ आता है तो आशीष जैन सर जैसे लोग मिलते हैं और इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन लेने के बाद अर्चना मैडम जैसी महोदया मिलती हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाती। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप मानेंगे नहीं, मेरे सीनियर्स सहमत होंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, कोई सा ऐसा व्यू नहीं होगा जो यहाँ पर बैठे हुए लोग नहीं जानते होंगे। जिस तरीके से मैडम ने हमें ईडी पढ़ाई थी सर, उसी तरीके से उतनी ही बारीकी के साथ उन्होंने इन 25 सालों में इस संस्थान को बड़ी बारीकी से इंस्पेक्ट किया है, निरीक्षण किया है, और जितना ऊंचाइयों तक इसको ले जा सकती हैं उसके ही गाइडेंस में हम लोग इतना ऊपर तक आज दिनांक तक पहुंचे हैं। एक गांव का लड़का हिंदी बोलते भी सीखता है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी अच्छी बोल लेता है, लेकिन आज क्या है कि थोड़ा सा मन से मन की बात करने की इच्छा थी तो वो इंग्लिश से फीलिंग नहीं आती है। तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानने लग गया हूँ, और आजकल गांव के लड़के की जगह मुझे सब लोग साहब साहब बोलने लग गए हैं, सर बोलने लग गए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलने लग गए हैं। यह मैजिक है इस संस्था का। जो परसेप्शन एक इंडस्ट्री के अंदर एक फ्रेशर का होता है, एज अ जीईटी वो इंस्टीट्यूट उस संस्था के अंदर एंटर करता है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो इंजीनियरिंग की उपाधि ग्रहण करता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर सर सहमत होंगे, राजीव शुक्ला जी यहीं बैठे हैं, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर तक पहुंचता है। 25 साल का वो अंतराल होता है, उतना बड़ा अंतराल होता है। तो जब हमने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था, जब हम और आप इस इंस्टीट्यूट के एक स्टेक होल्डर के रूप में, स्टूडेंट के रूप में आए थे, मैडम अर्चना, सर लालवानी यहाँ पर निर्देशक और फैकल्टी के रूप में हुआ करते थे। उस पर्टिकुलर स्पान से लगा के हमारा जो इंस्टीट्यूट को देखने का नज़रिया बाहर के मार्केट का बना है वो बहुत ही बदल गया है। जैसा आज आशीष जैन सर को, सर टीसीएस से बैठे हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि हमारे सर हैं, इसी तरीके से हमारी संस्था भी उस छोटे से इंस्टीट्यूट में जिसमें 180 का इंटेक था, आज दिनांक को यहाँ ऑटोनोमस स्टेटस है, एनबीए एक्रेडिशन है, ऑफ कैंपस है। 180 की स्ट्रेंथ को हमने 2200, 2700, 2800 तक क्रॉस किया है, और आने वाले समय में हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के स्टेटस के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी लिमिट 2 मिनट की थी, शायद ज़्यादा हो गई होगी, पर पुनः आप सभी का हृदय तल से इस कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. I request Principal Ma'am, Dr. Archana Kirti Chaudhary, to kindly come on the stage and guide us with her words of wisdom. Very good afternoon. आपको देख के क्लास लेने का मन कर रहा है. Anyway, so
first director, mentor, actually, who give birth to this baby. And this baby is going to be 25 years old now. Dr. R.J. Lalwani. Our advisor, Dr. A.G. Kothari sir. Our esteemed alumina, head of the department, deans, training placement director, faculty members, and my dear students. I always say my dear students. I request my students, because I believe that they are actually the true flowers of this garden. So spread fragrance in this garden with broad smile. Now I can modify this. I request you, the society is the garden. Spread fragrance in this society with your broad smile. So whatever be the problem, kitne bhi challenges aaye, always maintain smile on your face. This is the best gift you will give to us. Most of the students are from 1999. 99 batch से एक अलग ही संबंध है. उस batch को I don't have words to say what relationship we had and what are the best moments we share. That I remember all these moments. किस तरह डांटना, किस तरह क्लास लेना, किस तरह कमरे में बंद कर देना, किस तरह और number of problems, number of solutions, and you people are saying problems? We don't understand the problems. What is the meaning of problems? We have multiple challenges, but we were happy at that time, right? We enjoyed the best moment in the college. Right. Now you have multiple facilities. Everything is possible. We don't have this type of auditorium जहाँ हम बैठ के बात कर सकते हैं. We don't have even washrooms in the college. So I am not discussing about the journey of 25 years because this I will discuss at 6 o'clock in the program. So today, at this moment, I want to discuss only with I want to talk only with the alumina. आपको ऐसा लगता होगा ना कि कॉलेज आपको भूल गया. You never, आपको realize नहीं होगा. We always remember our alumina because you are actually our strength. ये कॉलेज हमसे नहीं बना, हमने कुछ नहीं किया. ना मेरी टीम, ना मेरा मैनेजमेंट, ना मेरा फैकल्टी, ना कुछ. कॉलेज बनता है स्टूडेंट से. So everything, all success, you are the real heroes of the society who make this event possible, who make IPS Academy a proud college. If you, most of the students, most of the juniors are thankful to you because the what we can say, the roadmap set by you or by the benchmark set by you, that is awesome. I really appreciate. Most of our alumni are doing very well. Very well. I'm really proud of them. When I was the faculty over there, it was not my dream to stay a long time, to be associated with IPS Academy for such a long time. But at this stage, IPS Academy is only my dream. This is actually, I want, most of the juniors are present here. I think most of the junior students are there. So, yeah, very good. You get the best opportunity to interact with your alumni. ये जो आपके alumni है ना, ये आप ही की तरह बैठते थे, और लेकिन आपकी तरह चुप नहीं बैठते थे, right? है ना? कभी चुप नहीं बैठते थे. And one alumni I never forget, Sumit. Sumit is present here, yes. Like Sumit. Sumit, raise your hand. He is always sitting in the class like this. Always sitting in the class like this. I came, I closed, मैं जाती थी उसके पास, वो बोलती थी ऐसा रख. Now ask questions. Always multiple questions. And as an outcome, he is doing the best in his life. So I request all of you to maintain a smile on your face and be responsible for spreading fragrance in your garden also or your neighborhood. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I request Dr. R.J. Lalwani sir to kindly guide us with a few words. सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि 25 साल की एक वंडरफुल जर्नी आप सब लोगों ने तय की है. हमने एक छोटा सा बीज डाला था, वो भी बंजर भूमि थी. फर्स्ट बैच वालों को याद होगा, ये बिल्डिंग भी नहीं थी, एक वॉशरूम भी नहीं था,
एक टेंट लगा के सामने झोपड़ी टाइप बनाया था। लेबॉर्ट्री पीछे शेड में हाइड्रोस लैब, अप्लाइड मैकेनिक्स लैब, हमने एक टीम वर्क लगन के साथ काम किया, अपना खून पसीना जो भी हो सकता था। और हमारे पास फैकल्टी भी नहीं थी। अर्चना जी को मैं दूसरे डिपार्टमेंट से ले आया। गोविंद राम सक्सेना में जो भी फैकल्टी में वो आने नहीं है, डॉक्टर भाटिया वगैरह, उनको बुला के लाया। हमारा सिलेबस अप्रूव करना था देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर चांदवानी मेरे स्टूडेंट थे, मनोहर चांदवानी, उनको रिक्वेस्ट की, वो डीन थे एकेडमिक देवी अहिल्या की, उनको रिक्वेस्ट करके हमने सिलेबस अप्रूव कराया। फायर टेक्नोलॉजी के लिए हमको मालूम है अर्चना जी को नागपुर जाना पड़ा। हमने कहीं का इधर से उधर से, जिसने मेहनत जो की है उनको, अर्चना जी को, जो समय के फैकल्टी हैं, कुछ तो बचे हैं, कुछ है ही नहीं, और जो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया मुझे अभी भी याद है। और मैं चाहता हूँ ये बीज जो है वट वृक्ष की तरह पूरे विश्व में क्या, मून पर भी। मैंने अभी ये ड्राइवरलेस कार देखी। अब मोदी जी को ये पेटेंट वगैरह सब हो जाए फॉर्मेलिटी, मैं मोदी जी को इन्फॉर्म करूँगा। मेरा छोटा भाई सांसद है, उसको भी दिखा दूँगा, और मून पे हम इस व्हीकल को भेजेंगे। लेकिन मेरा जो जवान इंजीनियर्स होने वाले हैं, एक तो हमारा टेलीसा उसमें गया है कंपनी में 4 करोड़ के पैकेज पे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और भगवान के यहाँ देर होती है, नाव हिलती डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। कभी भी आप हिम्मत नहीं हारिए। और हिम्मत, मैं जब गिर गया था, अभी गिरा हूँ, तो मैं उस पत्थर पे पाँव रख के और ऊंचाई पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो वही मेरा आपसे सबसे निवेदन है, इंजीनियर्स IPS एकेडमी को जिंदाबाद रखिए। और मैं 2099 में यदि हुआ इस धरती पर तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। आपको शुभकामनाएं, और मैडम को भी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, sir, for such inspiring words. I request Dr. A.G. Kothari, sir, to kindly guide us with a few words. Okay, thank you, madam. Today, actually, we are trying to celebrate a silver jubilee. Of course, I came here, I think 10 years back, and I think so that alumni has got a great responsibility to take this institute to a greater heights. See, how you can contribute to this institute for taking it to greater heights is that you please keep in touch with your alma mater, and see, even it is the responsibility of ours also, is the responsibility that you should be given the due importance. And what you can do is you can come to this institute, interact with the head, and then guide in terms of advisory board. We have advisory board where there is a representation of alumni. We have BOS, I think, where there is a representation of alumni. And we can also call in other bodies as a special event. There is no problem about that. So what I will request to all the alumni is that they can contribute through experts, lectures. They can contribute towards mock interviews so that our students can be placed at other places. As well as you can also, if you have a employability skill, you can take other students also. So I think I will just close here. Thank you for patient hearing and interaction. Thank you. Thank you, sir. Respected alumni, it is an honor to have you back on our college premises, where you might have spent countless moments of friendship, laughter, and learning. Your presence here today fills us with immense pride and gratitude.
This alumni meet is a platform for us to express our appreciation for your remarkable achievements, listen to your path of hardships, and relive the cherished memories we have together. Our institute has always aimed to provide us with a holistic education, emphasizing not only academic excellence but also shaping us into responsible and compassionate individuals. As a proud alumnus, you embody those values and principles in shaping your own future and the future of the society. So come, let us celebrate this reunion, taking the pride of completing 25 years of success and rewards, honor the accomplishment of our alumni, and create memories that will be treasured for a lifetime. At this momentous gathering, we have the privilege of hearing from some of our esteemed alumni who have graciously agreed to share their experiences and wisdom with us. Their journeys are testaments to dedication and perseverance. Now let us invite our alumni speaker, Mr. Ashutosh Sharma from 1999 batch, to come on the dais, please. May I call Ms. Kirti Joshi from 1999 batch. Hi everyone. Definitely I am not prepared to speak about anything because we just thought that we will have some chit chat. It's a chit chat. Definitely this is a जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 1999 में, डेफिनेटली बहुत कम लोग थे हम लोग, इसलिए एक बहुत बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी अर्चना मैम के साथ में, ललवानी सर के साथ में, और बहुत इजी था उनको अप्रोच करना और किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना, जो शायद मुझे लगता है कि जितना इनटेक है उसके कारण शायद बहुत सारे लोग हेजिटेट होते होंगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट टू डू गुड इन अ लाइफ और फैकल्टीज़ और जो मेंटर्स हैं दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, तो डेफिनेटली रीच आउट टू देम एज वी यूज्ड टू डू, and I think you guys will have great future. Thank you very much. Mr. Vineet Neema from 1999 batch. So, lot of nostalgic feelings standing over here. Again, I'm not prepared, but I'll just randomly speak because a lot of turmoil of thoughts when you meet your teachers, when you meet your director after 25 years, when you meet your friends. Of course, we meet regularly, but when you meet your teacher, your director after 25 years, when you see your institute at this level, which had just one floor when you started, so lot of nostalgic feelings. But on the first note, I'd like to thank Archana ma'am and the management at IPS to invite us at this moment. We are blessed that we are part of this journey. And we have our first director with us, Dr. Lalwani. Archana ma'am, who taught us ED. So she was our very first teacher. Dr. Lalwani, we were in the journey where this building was not there. We started in the architecture building of IPS Academy. So we started our classes over there. Our college did not have affiliation. We were the 4th engineering college in Indore. And we had all our 10 papers together. So you guys have first semester with 5 papers. But due to some affiliation things, we had our 10 papers in the very first year. We were the last DAVV batch. Our next batch moved to RGPV. So our all syllabus was with DAVV. So those were the few feelings and few thoughts which which I still remember. But lot of feelings. I would just like to mention you that under the mentorship of Archana ma'am, like you are blessed that you have principal like Archana ma'am. Utilize it to the fullest. Because
at this point in time, you do not realize what is the importance of having such faculties. But when we sit, or when you come at our age, when you see 25 years down the line, you'll feel the importance of the faculties you have. So utilize, as my friend Kirti said, utilize these faculties to the fullest. Utilize your time to the fullest, because the energy or time you spend in engineering, spending or enjoying the time in engineering is equally important, but at the same time give due importance to your syllabus, give due importance to your, do innovative things. This time would never come again, and you'll realize the importance of this time when you grow up in your career. Utilize your given facilities. We did not have these facilities. You are blessed that you are with these facilities. So this is the recommendation from my side, and I wish you all the very best. Thank you so much, ma'am, for calling us. Thank you so much, guys, for listening. So presenting you with the token of love from Institute. May I call Mr. Vashisht Jain? Good evening, all. As Vineet has mentioned and Kirti has also mentioned the same, that I am also not at all prepared for this, speech, what to say, what not to say, but definitely, I'm going to share the experience, the learning, whatever we have in last, 25 years. Yes, as we all know that we took the admission in this college in 1999 and we completed our engineering in 2003. So the biggest learning what I had so far is failures are bound to happen. I mean, you cannot, get rid of the failures. The most important thing is like, how do you handle with them? It is all about your resilience. How do you handle your failures? And looking into the today's landscape, today's scenario when technology is changing, I mean, we all are engineers. Mostly we all are engineers, right? So technology is changing. Learn, unlearn, and relearn. These are the three things which everyone has to remember at any point of time. You have to learn, you have to unlearn, and again you have to relearn the new things. If you are ready for it, then definitely the sky is the limit. You can grow the way you want, and you can reach to the height wherever you want to, go. But yes, you have to be ready. And I mean, don't worry if you fail. It is bound to happen. The other thing which I would like to share is keep, be in good shape. I mean, take care of your health, because, all kind of stress will come, all kind of failures will come. But definitely, if you are physically well, if you are mentally well, then definitely you can handle each and every failure. Yes, I mean, as Vineet has also mentioned, Kirti has also mentioned that whatever facilities you are getting right now, make the most of it. And be happy. Swasth rahe, vyast rahe, mast rahe. Thank you. Thank you, sir. May I call upon Mr. Ankit Goda from 1999 batch? Okay, good evening, everyone. So probably this is after 25 years we are speaking on stage again in our college. So this is really like going back in times where we do not have this kind of facilities, as we already talked about, my friends already talked about. So it is really nice to see our college grow something big under the guidance of our Lalwani sir and now Archana ma'am. So we never thought like probably we would be coming at this point in time in our college, speak something about it, and see so many peoples over here now. We were just probably 60, 70 who joined in 1999, and now we just came to know like 2,200 people, students join every year here. So that's quite a tremendous growth for our college, and we're really happy about that. So as Kothari sir also mentioned, like alumni have a responsibility. So now since I have some, I would say employability is available with me, so I would probably like to explore that opportunity with
team also. Like I would, because I was stunned. Like students are preparing autonomous vehicles over here already, which companies are still trying to do it. So it's really good to know like students are really such employable over here already. As I said, being an employer, so I would straight away say like students are employable over here. And while I was planning to come to this, like I asked my team over there in my company, like who all are from the IPS Academy and everything, why you're not going in the aluminum meet. So I said, we are not going this time, but said I am going because it is 25 years. So I really feel good, like my college students are coming over to us for the jobs also. So really happy for this, keep growing. I think most of the alumni are here, like other batches, 2004, 9, 11. So we have from next 2003 batch also. So it's really good, learn the things, you have so much of facilities. We do not have these facilities available at that point in time. So you should really avail that. And we are always available for college. Whenever you need us, we are available. Thank you very much. So presenting to you a token of love from Institute. Thank you so much, sir. May I call upon Ms. Shraddha Bansal from 1999 batch. Good evening, one and everyone. Myself, Shraddha Bansal. I'm from batch 99, 2003 pass out, and it's more than 20 years. मैं पास आउट हुए तो 20 years से ज़्यादा हो गया. और the best thing is that कि मेरे साथ ये हुआ कि when I passed out, Ashra ma'am and my other teachers invited me to join the college and I worked as a faculty itself here for 6 years. So this is my second home. And Ashra ma'am is my mentor, my guide, everything. मतलब I always remember मैम ने हमको कितना डिसिप्लिन में रखा था. और ललवानी सर का वो डायलॉग जब हम सब उसमें इकट्ठे होते थे कोर्टयार्ड में, एवरीवन रिमेंबर 99 बैच, परंपरा, प्रतिष्ठा, मोहब्बतें. So IPS is always rocked and always rock. In future it also rock. Yes? Thank you very much. Ma'am, presenting to you a token of love. Thank you so much, ma'am. May I call upon Mr. Deepak Soni from 2000 batch, Mr. Anurag Agrawal from 2003 batch, Mr. Kulan Alyachit from 2003 batch. Hey, good evening. I'm not prepared. So, but मेरे को मैकेनिक्स का वो वाला वाइवा याद आ गया जब. So like I had so many memories from this college. The only thing I miss in this college is the green lane, which is not now green, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड करा मैम, अब वो ग्रीन नहीं रहा है. और मैं मोस्टली कॉलेज आता रहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा चेस खेलता है. सो IPS बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, तो मैं बच्चे को लेके आता हूँ. तो मैं कंटिन्यूसली टच विद अरविंद सर. और मैं इंदौर में बेस्ड हूँ. इफ़ एनीथिंग एनीवन नीड फ्रॉम मी, जस्ट टेक माई नंबर फ्रॉम अरविंद सर, यू कैन कनेक्ट विथ मी. आई हैव स्टार्टेड अ कंपनी ऑल्सो, और किसी को लगता है तो अपन उस पर बात करेंगे. देयर लाइक कपल ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर कनेक्टेड विथ मी फॉर माई कंपनी. लाइक आपका एक मोहित था, वो मेरे साथ है अभी मैम, लास्ट ईयर जो पास आउट हुआ. सो इज़ वर्किंग विथ मी. तो मतलब अरविंद सर से मैंने उससे बात करी थी. तो आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन हियर. थैंक यू.
Thank you, sir. May I invite Miss Yashasvi from 2004 batch, Mr. Shashank Bagrecha from 2005 batch, Mr. Rakesh Jethiwal 2008 batch, Mr. Gautam Sharma 2009 batch. सभी लोगों ने प्रिपरेशंस की बात करी कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो प्रिपरेशंस के लिए तो ऐसा था कि मैम केबिन में बुला करके डांट करके बोलती थी कपड़े ठीक कर ले, बाल बना ले, 10 मिनट में सेंट्रल बिल्डिंग में जाके प्रेजेंटेशन देना, एग्रेडेशन की टीम आ रही है। तो प्रिपरेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। द डेट वॉज 21 September 2009। द डे वॉज मंडे और इंडक्शन का कार्यक्रम था आज से 15 साल पहले, आज के दिन ही। फॉर्चुनेटली आज भी 21 September ही है। सेंट्रल बिल्डिंग में जो हॉल है वहाँ पर अ लेडी वॉज स्पीकिंग टू ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और मैं कहीं पीछे बैठा हुआ था। IPS 2009 में आखिरी एडमिशन मेरा था, आखिरी एडमिशन। सारी सीट्स ख़त्म हो गई थी, एक सिविल की सीट बची थी, कैसे बची थी पता नहीं 2009 में, पर वो फॉर्चुनेटली मुझे मिल गई। तो वैसे ही कॉन्फिडेंस लो था, सबसे पीछे कहीं बैठा हुआ था। A faculty member was on the podium and she was talking so politely to everyone कि ऐसा करना, ऐसे करोगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा करोगे तो अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। और आखिरी में उन्होंने एक शब्द बोला, एक सेंटेंस बोला जो अभी भी मुझे याद है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। तो दैट स्टक इन माय माइंड। मैंने कहा यार पता नहीं कौन मैम है, थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। फिर 2 दिन बाद क्लासेस शुरू हुई तो मैम हमें पढ़ाने के आ गई। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाज द सब्जेक्ट बैक देन। मैम आज भी मैं बोलना चाहूँगा ग्राफिकल मेथड ऑफ ट्रस आज भी मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसे करूँ ग्राफिकल मेथड से। 15 साल हो गए हैं। मैंने पिछले 2 साल पहले नहीं बाकी सारे मेथड्स आ गए, लेकिन ग्राफिकल मेथड से मुझे आज भी समझ में नहीं आया। 2 साल पहले मैंने फिर ट्राई किया था कि समझूं उसको कैसे करूं, नहीं आया। तो जर्नी इज़ वेरी डिलाइटफुल। अभी भी आप लोग ने मुझे एलुमिनी बना करके लिए बुला लिया यहाँ पे, लेकिन आई डो नॉट फील लाइक एन एलुमिनी, आई फील लाइक दैट आई एम स्टिल हियर। सर का मैसेज आया था कीर्ति सर का कि एलुमिनी मीट है, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी कहाँ से एलुमिनी हो गया हूँ मैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि 15 साल हो गए भाई। कब तक अपन कॉलेज के बारे में सोचते रहेंगे कि हाँ भाई कॉलेज में ही हूँ। तो यस, सभी के बारे में अच्छी मेमोरी है मेरी। टीचर्स से रिलेटेड अच्छी मेमोरी है, अरविंद सर से रिलेटेड अच्छी मेमोरी है कि एक फर्स्ट ईयर में C++ का क्लास होती थी, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया वो। अरविंद सर पास में बैठ करके मुझे समझाते रहते थे। अरविंद सर को शायद पता नहीं होगा, पर मुझे समझ में नहीं आता, वो डब्बा मुझे आज भी समझ में नहीं आता। अरविंद सर ने मुझे बोला था तेरे अंदर ज़ील ही नहीं है, तुझे समझ में ही नहीं आएगा वो ज़ील। अब उस समझ से मुझे ज़ील का मतलब भी नहीं समझ में आता था कि ज़ील क्या होता है। C++ कैसे समझ में आएगा सर। तो यही जर्नी रही है। अभी आई एम फॉर्चुनेटली डूइंग वेल, बट यहाँ पे आकर के मैं वापस 17 साल का ही हो जाता हूँ। आई एम फील लाइक आई एम इन 2009 राइट नाउ। तो यस, इट्स अ गुड प्लेस टू बी। एंड आप लोग जो जूनियर्स बैठे हुए हैं उन लोग के लिए भी ये समय आएगा, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको भी नॉस्टैल्जिया फील होगा कि जब हम लोग थे, जब कैसे थे। अभी मैं सोम लैब में गया था तो आई फील लाइक जो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन थी, आई यूज टू यूज़ दैट। चूना होता था कुछ, लाइम मोलासिस का मैं कुछ एक काम कर रहा था, तो उसमें अय्यर सर मेरे मेंटर थे। अय्यर सर इज़ नाउ तो अय्यर सर मुझे बोलते थे कि जितना चूना नीचे गिरेगा वो खुद समेटना पड़ेगा, वो खुद झाड़ू लगाना, उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी भी तेरी है। तो शाम को 5:30 बजे के बाद आई यूज़ टू वर्क ऑन दैट। एंड पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया, क्योंकि पढ़ाई मुझसे होती नहीं थी। बाकी सपोर्ट एक्सपोजर सब यहीं से मिला। तो यस, इट हेल्प्स टू बी हियर। एंड आप लोग सबसे मिला, अच्छा लगा मुझे। सभी लोग पुराने सभी मिले। थैंक यू।
Thank you very much, sir. Mr. Gaurav Agrawal, 2010 batch. Mr. Vaibhav Jain, sir, 2011 batch. Good evening to all respected faculties and my seniors. So I was thinking कि यार मेरा नंबर नहीं आएगा, सीनियर सब संभाल लेंगे जैसा मैं कॉलेज में सोचते थे हम लोग. So there was no tension in college because my seniors helped me a lot and very excellent faculties. Rupesh sir हैं, Arvind sir, who taught me, and I am doing well. And I was campus selected in 2011. In TCS I got selected, and I would like to thank that my base was very strong because of the activities which we performed in college. And after completion of my engineering degree, I also did MTech from BITS Pilani in data science and engineering. And I also did 1 year executive program from ISB Hyderabad in my career journey. And I feel that I was fortunate and I did. So I would like to thank my faculties, and I really had very good memories. I'm working in Nagaro right now. It's my 6th company, and I have 12 years of experience. And I'm working in AI specifically. So again, thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Mr. Prashant Singh Chaudhary, 2013 batch. Good evening all, respected ma'am, sir. मैं प्रशांत सिंह चौधरी, मैं 2013 बैच का था. उस वक्त क्या है कि मैंने अपनी जब काउंसलिंग के टाइम पे फिलअप करा था तो मुझे कुछ और अलॉट हुआ था, तो मैंने उसको अपग्रेड कर दिया. तो आज मैं थैंकफुल हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. क्योंकि आज मुझे जो IPS से सीखने को मिला वो कहीं और नहीं मिल सकता था. क्योंकि यहाँ पर हर बार मैंने कोशिश करी अपना बेस्ट देने की और मैंने दिया भी सही. और जो कसर मेरी बीटेक में रह गई थी कि मैं कुछ परसेंटेज से कम रह गया था और जो भी मैंने मस्ती करी और जो भी खेल कर, तो फिर उसके बाद में क्या रहा कि एमटेक में मैंने वो कसर भी पूरी करी. क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे क्या है कि मैं कॉलेज में टॉपर था CPM ब्रांच में, और मुझे अच्छा भी लगा था कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई था. 82 परसेंटाइल लेके आया था, 8.2 CGPA. तो थैंक्स फॉर मैम एंड माय मेंटर्स, और थैंक यू एवरीवन. I request Alumina, kindly introduce yourself, because most of the people who are sitting, they don't know. हमें आप सिर्फ स्टूडेंट ही याद है, अभी आप क्या कर रहे हैं ये जानना है. ठीक है? In 2017, I passed BTech from IPS, and in 2021, I am passed MTech from IPS Academy. And that year, I am placed in Reliance Industry, and I am currently working with Madhya Pradesh Jal Nigam project in mass planning and engineering as an assistant engineer. Thank you. Mr. Ankit Lad, 2012 batch. Mr. Jatin Tamrakar, 2021 batch. Mr. Anuj Lad, 2024 batch. Mr. Prasuk Jain, 2018 batch. Mr. Anuj Lad, 2024 batch. Good evening, everyone. So, firstly, my name is Anuj Lad, as previously she said. और हम लोग अभी 2024 बैच पास आउट ही हुए हैं, तो एल्यूमनाइज जैसा कोई फील तो नहीं आ रहा है अभी, तो मैं एज अ स्टूडेंट ही बात करना चाहूँगा. सो लाइक जैसे सभी लोग ने अभी बताया कि 1999 वाली जो बैच थी वो फर्स्ट बैच थी हमारे इंस्टीट्यूट की, वैसे ही हमारी जो बैच थी वो पहली बैच है जिसने फर्स्ट ईयर से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है. और पहली बैच भी थी जिसने फर्स्ट ईयर से कोविड को फेस करा है.
बहुत लाइक 3 सेमेस्टर्स ऑफ कोविड, हमें लगा था हम कॉलेज कभी देख ही नहीं पाएंगे, लाइक जो कॉलेज सुना था, फिल्म्स में देखा था, कभी देख ही नहीं पाएंगे। सो ऑल्दो बहुत कन्फ्यूजन था, मेरे मेंटर्स ने, फैकल्टीज़ ने भी बहुत समझाया कि कॉलेज अच्छा है, और लाइक मैंने केमिकल ब्रांच से हूँ मैं, तो बहुत कम ही कॉलेजेस में केमिकल ब्रांच है, इंक्लूडिंग IPS अकेडमी। सो बहुत कन्फ्यूजन में था कि ब्रांच लूँ ये कॉलेज लूँ या नहीं लूँ। बट अब जब पास आउट हो गए हैं, सब कुछ कर लिया, बहुत एक्सप्लोरेशन करा कल्चरल में, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, अब जब जॉब है और जॉब में जो एक ग्रूमिंग फील हो रही है, अब लग रहा है कि हाँ जो भी इनपुट्स दिए और जो कॉलेज का सपोर्ट रहा, उससे आज जो आउटपुट्स मिल रहे हैं, इट्स माइंड ब्लोइंग। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन कि हमने 25 साल हमने कंप्लीट करे, 25 years ऑफ एक्सीलेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और सभी कॉलेजेस में मुझे IPS अकेडमी में अगर कुछ हटके लगा या हमारे इंस्टीट्यूट में लगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, तो जो यहाँ पे अपनापन है वो शायद बाकी कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स मुझे कभी फीडबैक नहीं दे पाए हैं कि हाँ हमारे फैकल्टीज़ हमसे इतना अच्छे से रहते हैं, एकदम फैमिली जैसा। सो वी आर नॉट जस्ट अ इंस्टीट्यूट, वी आर अ फैमिली। थैंक यू सो मच। Thank you, Anuj. Mr. Prasuk Jain, 2018 batch. Mr. Vedant Bhenia, 2023 batch. Mr. Pradeep Solanki, 2011 batch. Mr. Devarshi Kumar Dev, 2012 batch. Mr. Ankit Yadav, 2004 batch. Mr. Rajat Kulkarni, 2021 batch. Mr. Sandeep Sharma, 2005 batch. Mr. Mayank Dutt Mehta, 2008 batch. Mr. Abu Bakar Siddiqui, 2024 batch. Mr. Jitendra, 2012 batch. Mr. Rahul Agrawal, 2011 batch. जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो दंडवत प्रणाम सभी गुरुओं को, क्योंकि जो शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा से चलती है, जो अनवरत कालों से चलती आ रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि अपने को अपन क्या है ये बताने वाले गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए अपने शास्त्रों में और पुराणों में भी ये उल्लेख है कि हनुमान जी बाल रूप में और अपने आप की ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पहचानते नहीं थे कि वो क्या थे। उनको उनके गुरु ने बताया, मतलब मुझे इतना एकदम विस्तृत तो नहीं पता, बट हाँ कि उनकी शक्ति क्या है। तो बस वो शक्ति बताने वाला एक गुरु होता है, और वो गुरु का महत्व अपने को समझना में आना चाहिए। और अगर आप गुरु की तरफ बैठ के अगर देखें तो एक गुरु के नज़रिए से देखेंगे तो गुरु के सामने बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो गुरु की भी एक सीमा होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, सचिन तेंदुलकर का गुरु सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं खेलता था क्या? नहीं, परंतु वो गुरु की काबिलियत थी कि उसने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना सिखाया। फिर उस शिष्य सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला और वो आज एक अलग क्रिकेट का भगवान माना जाता है। तो कहने का सार है कि गुरु के पास एक सीमा होती है और अपन शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने गुरु का भरोसा अपने ऊपर कैसे जीतता है। तो अपने को ऐसा करना चाहिए कर्म कि गुरु अपने पे विश्वास करके अपने पे उसकी कृपा दृष्टि दे पाए, क्योंकि गुरु के पास समय की सीमा है, बहुत सारी सीमाएं रहती है। तो अपने पे गुरु का विश्वास है, भरोसा है, ऐसे अपने को कर्म करना चाहिए। बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले की कृपा से। अगर आज आप IES IPS कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अगर बैठे हैं तो सब कुछ है आपके पास। अगर अपन अपने संस्थान से बाहर निकलें तो कहीं ऐसे भी शिष्य हैं, बच्चे हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है दुनिया में। तो अपने पास सब कुछ है, सारे संसाधन हैं, बस अपने आप को एकलव्य जैसा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा अभी मैंने पंजीयन कराया नहीं था, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, तो बैच की बात हो रही थी। आप सब थोड़ा ज़रूर दीजिएगा कि मैं अभी इसी दुविधा में चल रहा हूँ कि बैच किसको बोलते हैं, जिस साल प्रवेश लेते हैं उसको कि जिस साल निकलते हैं उसको, एलुमनाई में।
नहीं मतलब साल कौन सा कहलाता है? मतलब कोई अगर छात्र, हाँ मेरे ख्याल से सभी के प्रश्न होंगे। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे को अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि जिस साल आपने दाखिला लिया और जिस साल बाहर, वो दोनों साल को बोलेंगे बैच रेंज, मतलब ठीक है। अब इंजीनियरिंग के तो रेंज तो अपन लोग को शायद थोड़ा बहुत आ जाएगी समझ में, ठीक है। हाँ ये बात ज़रूरी है, ये भी ज़रूर है। तो मेरा 2007 से 11 है। कुछ ये मन के भाव थे थोड़ा सा आपके बीच में रखे, और जैसा आपने बोला कि क्या करते हैं, तो मैं राहुल अग्रवाल 2007 में यहाँ पे आया था, 2011 में यहाँ से बाहर हो गया आप गुरुओं के आशीर्वाद से। उसमें 3 बार बैक लगे 3 विषय में, और लगा जीवन में कि वो लगना अच्छा मेरे जीवन में लगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, मैं बोलने वाला कौन हूँ। कोई होनहार छात्र होता है उसका नहीं लगेगा, मगर मेरा लग गया तो कम से कम ये है कि अगर मैं बहुत आसमान में उड़ रहा तो समझ में आ गया नहीं बेटा तेरे भी लग सकते हैं। रही बात 2011 के बाद, मेरा कभी जीवन में ये ध्येय नहीं था कि मेरे को कुछ करने के लिए पढ़ना है, मतलब ना जॉब ना व्यापार ना कुछ अन्य। परंतु मैंने मेरी 7वीं कक्षा में, मतलब जब मैं 7वीं में था, जब मैंने C++ सीख लिया था, उस समय मेरी गली में MCA के विद्यार्थी हुआ करते थे, बड़े भैया हुआ करते थे। वो बोलते थे तेरे को जो आता है, वो उस समय वो बोलते थे यार ये हम लोग भी अभी पढ़ रहे हैं जो तू कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ वो चीज़ें ध्यान में थी दिमाग में। तो और उस समय हमारे यहाँ पे अपने यहाँ पे मतलब अतुल भरत सर भी हुआ करते थे, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर करियर मैनेजमेंट ग्रुप में। तो सौभाग्य से चूँकि IAS की छत्र छाया में थे, तो TCS कंपनी आई तो निकल गए जैसे तैसे भी। मतलब उसमें ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, सौभाग्य ही था क्योंकि बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी थे साथ में, और सादगी से मतलब बोले तो केमिकल इंजीनियरिंग, फायर टेक, मैकेनिकल सभी शाखाओं के छात्र थे जो TCS में हुए थे। तो कोई झंडे वाली बात नहीं है, मतलब बता रहा हूँ कि ये थे, अगर पूछा है ऐसा। उसके बाद मेरी जॉइनिंग आई थी 28 फरवरी 2012 की। मैंने टिकट कराया 28 फरवरी 2012 के उद्देश्य से कि वहाँ पे पहुँच जाऊँ, और साथ ही साथ मैंने 8 मार्च 2012 का वापसी का भी टिकट कराया था। दोनों टिकट मैंने साथ में ही कराया था कि मेरा जाने और आने का उद्देश्य था कि चूँकि आशीर्वाद से गुरुओं के और IPS कॉलेज की छत्र छाया में हो गया इतने बड़े मंदिर में, तो एक बार देख के आते हैं। उसके बाद मेरा अगर यात्रा की बात करें जीवन में, तो मैंने एक मतलब रियल एस्टेट का काम है, तेल का है, और कुछ स्टार्टअप्स का भी काम है, और अभी सोलर का भी काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ का भी है। सोलर में इंस्टॉलेशंस जो होते हैं घरों के ऊपर और कारखानों के ऊपर, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स अपन करते हैं, मतलब EPC बोलते हैं हम, हमको पता नहीं EPC क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंसल्टिंग, जो भी बोल ले उसका कार्य है। और मुख्य जीवन का अधिकतर समय मेरा सेवा कार्यों में जाता है। मैं सेवा भारती से हूँ, गोवंश सेवा समिति में हूँ, और कई सेवा संस्थाओं में रहता हूँ सुबह से अधिकतर। और कुछ अभी अपने अध्ययन कर रहा हूँ कुछ शास्त्रों का, जिसमें श्रीमद् भागवतम है। और ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी अगर कुछ स्टार्टअप्स में अगर कुछ कार्य करना हो तो अपन साथ में कर सकते हैं, और कुछ साथ में निवेश की भी ज़रूरत हो तो वो भी अपन देख सकते हैं साथ में करके। और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कुछ रिसर्च करनी हो या किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा बहुत समय देने के लिए।
हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने जब यहाँ से एलुमनाई नहीं मतलब फेयरवेल था कॉलेज में, जब वहाँ पे हुआ था अपना शायद मेन बिल्डिंग क्या बोलते हैं उसको, जहाँ नीचे मैस हुआ करती थी, कैंटीन हुआ करता था। तो वो बात जब भी थी आज भी है, शायद गलत भी हो या सही भी हो, परंतु भारत ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, बट स्टिल मतलब ज़ीरो इज़ फ्रॉम इंडिया आर्यभट्ट ने दिया, बट स्टिल व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आर नॉट फ्रॉम इंडिया। तो अपन लोगों को ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए, कुछ नया शोध करें, कुछ करें। और पढ़ाई का ध्येय जीवन में जॉब पाना या व्यापार करना या उससे कुछ आय अर्जित करना नहीं होना चाहिए। अपन यहाँ पे पैसा बनाने की मशीन बनने नहीं आए, अपन यहाँ पे प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी सीखने आए, इंजीनियरिंग सीखने आए। तो अगर यहाँ पे कोई छात्र अगर बैठे हैं तो ध्येय ये भी रखे साथ में कि कुछ सीखना भी है, अभियांत्रिकी, टेक्निकल कुछ। सिर्फ उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जॉब करना है या व्यापार करना है या कुछ, वो स्वतः ही अपने आप सब जो लिखा है भाग्य में आ जाएगा। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। आज स्टीव जॉब्स सब चले गए, 2011 के आसपास की बात है, तो आप सबको पता है एप्पल के फाउंडर का बंदा है, वो कैंसर से चल गए, क्या कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अपने जो छात्र यहाँ अगर बैठे हैं तो अपने जीवन का, समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद। Thank you, Rahul. Now I take privilege to invite those special alumni who are currently serving the institute. We are very fortunate to have you with us. Dr. Ashish Neem from Civil Engineering. Yeah, this is Dr. Ashish Neem from Civil Engineering Department, and I am serving as Associate Professor, and I am a member of this institute since 2007. Now here I like to share some of the qualities which I have acquired from my teachers, or what we have think about a teacher, that it's a very simple job. और मैं भी यही सोचता था, बट जब बीइंग अ टीचर, अब टीचर मैं अपने आप को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स अब आने लगे हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर। दैट्स वाई नाउ आई एम अ टीचर। सो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो एट दैट टाइम इन सिविल इंजीनियरिंग few faculty members are there, और civil engineering is one of the toughest engineering. So उसमें टीचर्स भी बहुत कम मिला करते थे। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो या कहीं से रिटायर्ड प्रोफेसर्स आया करते थे या रेगुलर बेसिस पर काफ़ी कम रहा करते थे टीचर्स। सो मैंने क्या क्वालिटीज़ अपने टीचर्स से ली और जिन्हें मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ। दैट जैसे मैम का पढ़ाने का जो तरीका है, और उससे भी बड़ी बात, हम अभी प्रोफेसर सब यहाँ बैठे हैं, सभी यही बोलते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, और बहुत काम है मतलब क्लासेस कम लेनी है। आई कैन प्राउडली से दैट अराउंड 60% क्लासेस ऑफ आवर्स was taken by अर्चना मैम। फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक 8 सेमेस्टर में 60% क्लासेस किसे कहते हैं। और आप सब भी जानते होंगे कि मैम कितनी बिजी रहती हैं। उस टाइम पर मैम वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और मैं जब 2011 में जब मैं फाइनल ईयर में था, मैम वाज वाइस प्रिंसिपल। उस समय वो कितना बिजी रहती होंगी, बट फिर भी वो रेगुलर हमारी क्लास लिया करती थी। वाटर रिसोर्सेस बैकग्राउंड से हैं मैम, लेकिन सॉन्ग भी पढ़ाया उन्होंने हमें। अभी अगर आज मुझे कोई बोल दे कि आपको वाटर रिसोर्सेज पढ़ाना है तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा कभी। मेरे साथ में ऐसा है, क्योंकि बहुत टफ सब्जेक्ट है। और दूसरी बात जो मैंने अपनी फैकल्टी से सीखी या मैम से सीखी है, वो ये है कि आप जितना सीरियस रहेंगे अपने स्टूडेंट के साथ में, आपका स्टूडेंट भी आपके साथ में उतना ही सीरियस रहेगा। When I was in 7th semester, I have to submit an assignment. I have to submit an assignment of hydraulic structures. Madam taught us Sarda type fall.
अब मैम जब वाइस प्रिंसिपल थी, अब मैं भी एक बेहतर स्टूडेंट था अपनी क्लास का, लेकिन इतना इंटरेक्शन फेस टू फेस मैम से नहीं हो पाता था। क्लास में हम स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड से पढ़ाई करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैम को ये पता है कि मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। मैंने सबमिट नहीं किया था असाइनमेंट, और मैं अपने कैबिन से मैम के कैबिन से बाहर निकल रहा था। मैम ने मुझे रोक कर बोला कि क्यों आपने अपना असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट किया अभी तक। तो मेरे लिए वही प्राउड की बात थी कि ठीक है, मुझे मेरे वाइस प्रिंसिपल जानते हैं, नाम से जानते हैं। फिर मैंने मैम को सॉरी बोला, अगले दिन असाइनमेंट दिया, पोलाइटली मैम ने सबमिट किया असाइनमेंट और मुझे ग्रेडिंग दी। तो ये क्वालिटी आप में भी, सभी टीचर्स में होना चाहिए, जितने भी टीचर्स अभी जो जूनियर लेवल पे हैं और आगे अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं। दूसरे टीचर की अगर मैं बात करूँगा तो हमारे कीर्ति सर, जो ही taught मी QSC इन 6th सेमेस्टर। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक टीचर को कितना धैर्य होना चाहिए उसमें। अभी क्या होता है कि एक्सटर्नल में अगर बच्चा आधा घंटा भी लेट हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम उसको इतना चिल्ला देते हैं, डरा देते हैं कि बेचारा वो एक्सटर्नल फेस ही नहीं कर पाता है। मैं 2 घंटे लेट हुआ था, पहली बार लेट हुआ एक्सटर्नल में, वो भी 2 घंटे। तो सर ने मुझसे ये भी नहीं पूछा उस समय कि क्यों लेट क्यों हुआ तू। मैं आया, खड़ा हो गया सर के पास में। सर ने कहा कि लेट हो गए, जाओ एक्सटर्नल दे दो, एक्सटर्नल जाने वाले हैं, तुम्हारे लिए रोक कर रखे थे एक्सटर्नल हमने। सर ने मुझसे पूछा भी नहीं। तो वो क्वालिटी भी आप में होना चाहिए कि ठीक है, मेरे पास में जो पावर है वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यूटिलाइज तो करूँ एटलीस्ट। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे अभी भी याद आती हैं। और अभी जो मेरे टीचर्स से मुझे जो पावर मिला वो मैं बताता हूँ आपको। दैट आई वॉज ज्वाइंड इन 2011, तब मैं फ्रेशर था। अभी 2023 में आई हैव रिप्रेजेंटेड माई डिपार्टमेंट एज एन NBA कोऑर्डिनेटर। तो बहुत बड़ी बात होती है, और मेरे डायरेक्शन में मेरे डिपार्टमेंट ने काम किया। मैंने पूरा गाइडेंस मैम से लिया और हमें अभी सेकेंड टाइम NBA एक्रेडिशन मिला। तो मतलब हमारे लिए कितनी बड़ी बात है ये कि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें किस काबिल बना दिया। नहीं तो NBA फेस करना, ऑटोनोमस फेस करना, टीम फेस करना इज़ नॉट सिंपल टास्क। तो आपको भी इतनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो यंग टीचर्स हैं वो भी इतने आगे बढ़ सकते हैं। सो फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. May I take the privilege to call Mr. Sandeep Khandelwal from 2000 batch. Good evening, everyone. Respected sir, respected madam. All my, I guess, old sirs, teachers, really wanted to thank you for arranging this alumni meet. I'm really feeling privileged, part of this college, and came out. I joined in 2000, I remember, in computer science engineering, and Archana ma'am used to teach us engineering drawing. And that engineering drawing, see, I just stepped out and I'm still trying to take my breath, okay? So, yeah, bear with me. So, you know, I still remember those days, and it's such a feeling privileged. When I got graduated in 2004, I think I was among very few, sir, I don't know. I got campus selected in one of the topmost company in country that point of time. And my journey started in IT industry. And I think I'm really doing good right now. I'm in Capgemini, working as a program manager, and currently leading team of almost like 100+ team member, enjoying my work. But I always feel cherished about my college and all my institute that I have given to me. So I think I'm really seeing a lot of faces. You must be part of the same alumni group. I really wanted to, you know, see good faces, and really, you know, would like to meet you, maybe offline. Yes. I think we always share a very special relationship. Yes. So I know 1990
right? So it's always good to see even our seniors, even our colleagues, and even afterwards, a lot of students join. So I'm really feeling very good. Thank you. Thank you, sir. Sir, just a token of love from the Institute for you. Thank you, sir. Ms. Anjali Srivastav from Civil Engineering. Mr. Apurv Sarda from Civil Engineering. मेरी इंजीनियरिंग 2006 to 2010 की है, बट उसके बाद इंस्टीट्यूट से बहुत लंबा कनेक्शन रहा है। इस पूरी ड्यूरेशन में इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज मैं अपनी खुद की एक कंसल्टेंसी चला रहा हूँ और अभी भी कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसके लिए सारे स्टाफ मेंबर को, मैम को, सर को, सबको थैंक यू बोलता हूँ। Mr. Divakar Singh from Civil Engineering. Good evening, everyone. I am Divakar Singh from 2006 to 10 batch. Presently, I am working as a assistant professor in IPS Academy. मेरी जो जर्नी रही है अभी तक की वो बहुत अच्छी रही है IPS के साथ। मैडम का एक डायलॉग मुझे आज तक ध्यान है, ये तो आपको खुदा को भी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं कि अल्टीमेटली मैम का वर्डिंग पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीज़ें जो रहती हैं वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती हैं। तो अल्टीमेटली मैम को, पूरे IPS कॉलेज को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। Mr. Harish Kumar Divedi from Civil Engineering. Good evening, everyone. Myself, Harish Kumar Divedi. Now I am presently working as an assistant professor in Civil Engineering Department. 2012 से IPS में मैं हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट ज्वाइन करने के बाद कीर्ति सर एक बात बोलते थे, अभी भी बोलते हैं कि मैम को जब हमने देखा है 2006 से, मैडम सोम भी पढ़ा रही, ED भी पढ़ा रही, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ा रही, DHS भी पढ़ा रही, CPM भी पढ़ा रही, तो सर बोलते थे कि मैम बोलती थी 4 साल रुक जाओ, जो अभी मैं परेशान हूँ ना 4 साल बाद ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, मेरे स्ट्रेंथ मेरे स्टूडेंट ही मिलेंगे मुझे। तो ये बातें आज से याद आती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Mr. Lalitesh Sinha from Civil Engineering. गुड इवनिंग। आप सभी को 25 एनिवर्सरी की सभी को शुभकामनाएं। आज IPS को 25 साल हो चुके हैं, इसके लिए सभी को बधाई। मेरे गुरु जो अर्चना मैम, कीर्ति सर, कौशल सर और सर का, मैम का स्टार्टिंग से ही हम लोगों को सपोर्ट रहा और एज अ स्टूडेंट भी मैम ने सपोर्टिव थे और मतलब हैं, और एज अ फैकल्टी जब मैं यहाँ से ज्वाइन हुआ 2016 में, सेम मैम का रिलेशन हर एक स्टूडेंट के साथ में वैसे ही रहता है। और जैसा कि एक अभी एलुमिना ने बोला कि वी आर वर्क एज अ फैमिली, हम लोग वाकई में IPS में फैमिली के जैसे वर्क करते हैं और उसी के रिज़ल्ट हम लोग को आज दिख रहा है कि कंटिन्यूसली 1999 से हम लोग जब चले थे और आज 25 साल हमको हो चुके हैं, तो काफ़ी हम लोग ग्रो कर चुके हैं। नेक NBA, ऑटोनॉमी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ चले हैं हम लोग। तो सभी को बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू। Mr. Praveen Devra from Civil Engineering. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे सभी ने बोला है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो यहाँ भी मैं कोई प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा स्कूलिंग अच्छा रहा। मैं 2011 का 12th हुआ था मेरा,
स्कूलिंग काफ़ी अच्छा रहा। उस डिस्ट्रिक्ट मेरिट में मेरा नाम था, कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी थी। कोई काउंसलिंग में गया था एक बार एडमिशन लेने से पहले, तो मैंने सबसे कंसल्ट किया कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए क्या है। तो मेरे एक बड़े ब्रदर थे, तो बोले कि बेटा तेरा कैलकुलेशन अच्छा है तो ऐसा तेरे को इंजीनियरिंग लेना है जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा हो। तो फिर मैंने पूछा, एक दो इंजीनियर भी थे उसमें, जीएस में एक पढ़ने वाले मेरे ब्रदर के एक मित्र थे, बोले कि सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा है, ऐसा है। तो फिर वहाँ से मैंने सिविल के बारे में काफ़ी सर्च किया और फाइनली 2011 में ही सिविल में एडमिशन लिया मैंने। मेरे जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें अर्चना मैडम ने भी पढ़ाया है, सीपीएम पढ़ाया है। फिर 2015 में पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद में कॉलेज एज ए रिसर्च एसोसिएट मैंने ज्वाइन किया, फिर गेट क्वालिफाई किया, फिर एमटेक में एडमिशन लेना था। तो एज ए कीर्ति सर एज ए गाइड उनने गाइड किया कि आपको सीपीएम से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देन 2016 में आफ्टर गेट क्वालिफाई मैंने सीपीएम ब्रांच में एडमिशन लिया, 2018 में कंप्लीट हुआ और अभी मैं सीपीएम ब्रांच का कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पे। और डिपार्टमेंट काफ़ी हेल्पफुल है और समय समय पे गाइडेंस सभी फैकल्टीज़ का मिलता है। यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी हैं ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज़ ने मेरे को पढ़ाया है, उसके लिए सभी को थैंक यू सो मच। Mr. Praveen Devara from Civil Engineering. Mr. Sumit Gupta from Civil Engineering. बेसिकली थैंक यू फॉर द इनविटेशन। मैं आज तो एलुमिनाई के रूप में देख रहा हूँ। मैं 2003 से आईपीएस स्कूल से मैं एक्चुअली एसोसिएट हूँ। सो मेरा स्कूलिंग यहाँ का है, मेरा कॉलेज आईपीएस रहा। सो मैं इंक्यूबेटर मैनेजर हूँ यहाँ पर। सो इतना लंबा एसोसिएशन है मेरा आईपीएस से कि ऑब्वियसली इट्स लाइक अ फैमिली एंड अ सेकेंड होम। सो मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और इसने जो मुझे दिया है ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद द बिजनेसेस, बट जो बेंचमार्क, जो एस्टीम आपको फील कराता है आईपीएस, दैट इज़ व्हाट। सो आप कहीं भी जाएं आपको महसूस, और जब भी आप किसी कन्वे करते हैं आप क्या कर रहे हैं। सो माई फर्स्ट नेम इज आई एम ए बिजनेस इंक्यूबेटर इन आईपीएस। सो दैट इज़ अ प्राउड फॉर मी। थैंक यू आईपीएस, थैंक यू मैम। Mr. Prajwal Chauhan from Civil Engineering. Good evening all. My name is Prajwal Chauhan, Civil Engineering Department. मेरा बीटेक 19 से 22 बैच रहा है और सिविल इंजीनियरिंग 24 से मैंने अभी ज्वाइन किया है एमटेक सीपीएम में एज ए आरए। मैंने मतलब सारे टीचर्स सभी डिपार्टमेंट के और मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मुझे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लगे। मैडम ने तो मुझे नहीं पढ़ाया है, जैसे कीर्ति सर ने मुझे पढ़ाया है, बाकी सारे टीचर्स मेरे डिपार्टमेंट के मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया। जब भी मुझे कुछ भी हेल्प लगती थी तो मैं सबसे पहले, जैसे हमारे अर्पी सेठिया सर है, अपूर्व शारदा सर है, मतलब उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाता था तो वो मुझे एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक छोटे भाई की तरह मतलब सपोर्ट करते थे। सारी चीज़ों में मेरी हेल्प की है उन्होंने। ठीक है, ओके। Ms. Neetu Mathuria ma'am from Computer Science and Engineering. Good evening all.
गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मेरी आईपीएस के साथ अभी तक की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए फैकल्टी भी। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने सभी ने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया है एज ए फैकल्टी मेंबर भी। थैंक यू मैम। Mr. Chamandeep Vimal from Computer Science Engineering. गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग मैम। मैं चमनदीप विमल फ्रॉम CAC डिपार्टमेंट। जैसे कि सर की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1999 से और 2003 में पास आउट हो चुके थे। वहीं पर एक ड्रीम जो है वो पनप रहा था एक बच्चे के माइंड में कि वो कहीं ना कहीं बड़ा होकर के एक टीचर बनेगा। वो क्यों बनेगा, वो ड्रीम क्यों उसके माइंड में उत्पन्न हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब आप जानते होंगे उस टाइम पे तो कंप्यूटर मतलब ऐसी चीज़ हुआ करती थी कि हार्डली किसी को देखने को ही नहीं मिलता था। तो जब हमारे स्कूल में 3-4 कंप्यूटर्स आए थे, एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ बहुत ही स्मॉल, जब हम रहा करते थे, हम लोग बहुत ही छोटे गांव में रहा करते थे। तो वहाँ पर एक स्कूल था, वहाँ पर 3-4 आपके कंप्यूटर्स आए हुए थे। तो जो टीचर्स थे वो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि आपको उस लैब में जाना है तो आपको आपकी जो स्लीपर्स हैं उनको उतार के जाना है और आपको आपके फीट जो है वो क्लीन करके जाना होते थे। तो देन जब हम लोग वहाँ पर गए, फर्स्ट टाइम हमको इंट्रोड्यूस कराया गया कंप्यूटर्स से, तो हमें देख करके बहुत एक एक्साइटमेंट था वहाँ जा कर के। तो गलती से मेरे से ये हुआ था कि जैसे कंप्यूटर को देख करके एक बच्चे के मन में रहता है कि यार नई चीज़ कोई सी दिखी है, क्योंकि सर को चलाते हुए ही देखा था कि एक्चुअली में ऐसा होता क्या है। उस टाइम पे कुछ गेम्स भी हुआ करते थे उसके अंदर, तो हमको बहुत उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया था। तो जा कर के वहाँ पर कुछ उसमें ऐसे कीबोर्ड्स में कुछ कीज़ को दबाने लग गया। तो सर ने वहाँ पर मुझे क्या करा था कि एक कोने में खड़ा कर दिया था। जब वो मेरा पहला ही इंट्रोडक्शन था अपने कंप्यूटर से, और वहाँ जा कर के मुझे खड़ा कर दिया था एक कोने में। तो वहीं हाथ ऊपर करके मेरा एक मन में ऐसी बच्चा रहता है, तो बच्चे के मन में बहुत वो रहता है कि नहीं, अगर मुझे यहाँ खड़ा कर दिया तो मैं एक दिन वो चीज़ करूँगा कि हाँ, मुझे उस चीज़ में कभी कोई छोड़ नहीं पाएगा, मतलब वो चीज़ के लिए मैं अपना डेडिकेशन दिखा पाऊँगा। तो और उसके बाद में मुझे कभी कंप्यूटर लैब में शायद ही हमको कभी ले गए होंगे वहाँ पर। तो वो एक ड्रीम जब सर यहाँ से पास आउट हो रहे थे, अपना कैरियर बना रहे थे, तब मेरे मन में वो एक ड्रीम बन रहा था। वो धीरे धीरे बना और फिर जब हम लोग स्टडी करके यहाँ पर मैंने 2014 में सर यहाँ पर ज्वाइन करा था अपना बीटेक प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे फैकल्टीज़ मिले जिन्होंने मुझे इंस्पायर करा अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। जो इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे यज्ञपाल सर हैं, अरविंद सर हैं, सबका जो गाइडेंस मिला उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। और एक टीचर कैसा होता है, कैसा मुझे बनना चाहिए, वो सभी मेरे डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं मेरे, जो बीटेक में मुझे पढ़ाया था जिन्होंने, और सभी जो ईसी डिपार्टमेंट के टीचर्स जैसे नीरज श्रीवास्तव सर हैं, HOD सर, इनके सभी के गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद IPS अकेडमी। I request the speakers to kindly speak in short as the guest has arrived for the further proceedings. Next, I would like to call Mr. Sanskar Mahato from Mechanical Engineering. So, I am Sanskar Mahato. I am from Mechanical Engineering Department. I am doing my MTech here from Robotics. And I'm also an RA here, working for Baha team. And for 3 years, we have been participating in Baha. For the first year, in 2023, we won the award for the innovation category. For 2024 in MBaha, we won the best debutant team award. And in eBaha, we came 6th in All India ranking. And now we are going for autonomous Baha, as you all see as you all saw our vehicle in the front. Thank you. Thank you, sir. Ms. Muskan Joshi from Mechanical Engineering. Mr. Nitesh Parmar from Chemical Engineering.
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो मुझे देख के मैडम हंस रहे हैं। मेरा नाम नितेश परमार है और मैं यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं 2008 पास आउट हूँ, 2004 एडमिशन, 2008 पास। कुणाल आईचिस सर मेरे सीनियर थे और मेरी जर्नी आईपीएस के साथ ऐसी रही कि जो भी कुछ मैंने सीखा वो यहीं सीखा, क्योंकि मैं 2004 में एडमिशन लिया, 2008 में पास आउट हुआ और 2008 में ही मैंने एज ए लेक्चर आईपीएस एकेडमी ज्वाइन किया था। तो मुझे ऐसा लगता कि मैं आईपीएस छोड़ के कभी गया ही नहीं हूँ। 2004 से लेकर आज 2024 तक मैं यहीं आईपीएस में रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। हरीशराम मैम ने मुझे पढ़ाया है, मुझे भी उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया। मुझे उनकी एक बात आज भी याद है कि वो एक एग्जाम्पल देते थे चौक को लेके। वो बोलते थे चौक, तो ये चौक का फ्रंट व्यू है और अगर ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा, ये चौक का टॉप व्यू है। तो ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो तो उसको फ्रंट से नहीं, उसको टॉप से देखें ताकि वो छोटी दिखेगी आप। तो थैंक यू मैडम। और एक और छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँ क्योंकि समय की कमी है। राजेश कौशल सर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया। वो अभी हेड है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, तब वो 2006 में फैकल्टी हुआ करते थे। तो कभी कभी कोई आता है तो सर हमेशा बोलते हैं कि मैं 2000 सबसे पुराना कौन है फैकल्टी में, तो सर बोलते मैं हूँ 2006। तो मैं सर को हमेशा बोलता नहीं सर आप नहीं, मैं हूँ, क्योंकि मैं 2004 का स्टूडेंट हूँ और अब फैकल्टी तो सबसे पुराना तो मैं ही हूँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो थैंक यू। Mr. Deepak Sharma from Chemical Engineering. गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक शर्मा। मैं 2009 का पास आउट हूँ। 2005-2009 बैच, केमिकल की दूसरी बैच थी ये। 9 में पास आउट हुआ और 2011 में वापस मैं यहीं पे आ गया। मेरी पहली जॉब ही यहीं से शुरू हुई और अभी मैं यहीं पे हूँ। जब फर्स्ट ईयर की क्लास लगी थी तो उस समय पे जो मुझे ध्यान है अभी कि 3 सेक्शन हुआ करते थे, A1, A2 और A3। तो अभी जो भी यहाँ पे पढ़ाते थे, अर्चना मैडम ही हैं यहाँ पे, जो उन्होंने सिविल ईडी पढ़ाया था। तो सबसे पहले लाइन पढ़ाया था उन्होंने और लाइन में ही जो बताया था उन्होंने कि उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो ऊपर से देखने में वो बिंदी दिखती थी। मैं हमेशा वो बिंदी ढूंढता रहता था बोर्ड में, मैडम ने कहाँ रख दिया वो लाइन, ये बिंदी में कैसे कन्वर्ट हो गई। तो मैंने मैडम से बोला भी कि मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला आप सेक्शन चेंज कर लेना, A3 में मैं शुरू से पढ़ाऊँगी। फिर मैं A3 में भी गया, तब भी समझ में नहीं आया, लेकिन ईडी मेरा पहली बार में ही निकल गया था। बाकी यहाँ पे कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं। एज अ फैकल्टी भी सबका सपोर्ट है एंड आई एम गुड एंड फाइन। थैंक यू। नहीं मैडम, एक क्वेश्चन और था। मेरा इंटरव्यू भी मैडम ने ही लिया था जब वाइस प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि वाई डू यू वांट टू कम इन एकेडमिक्स। अब एमटेक करने के बाद डायरेक्ट मैं यहीं पे आया, तो मैं जानता भी नहीं था कि एकेडमिक्स क्या है। तो मैं बोला मैडम यहाँ पे आराम है, काम कम करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैडम ने देख के ही बोला तुम बहुत मोटे ताजे दिख रहे हो, तुम्हें आराम की ही ज़रूरत है, पर यहाँ आराम नहीं मिलेगा। Ms. Pooja Bhatt from Electrical and Electronics Engineering. Good evening, everyone. I am the first batch of Electrical and Electronics. It started in 2003, and as a batch we were talking about, so 2003 to 2007. After that, I got selected in TCS, and for 10 years I was working in corporates. 2014, I came back in Indore, and 2017 I joined here doing MTech because of my second mother, that's Principal Ma'am. And after that, yes, I am now pursuing my PhD again because of the motivation given by Ma'am. And I'm very, very happy to be here and will always be a part of this family. Thank you. Ms. Shanam Beg from Electrical and Electronics Engineering.
Mr. Shiv Kumrawat from Electrical and Electronics Engineering. Mr. Rehan Mansoori from Electrical and Electronics Engineering. I request the speakers to kindly take less time to speak, please. The guests are waiting. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस आईपीएस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 2019 से आया था। फर्स्ट ईयर में मेरे को राहुल सर चड़ोकर सर ने ईडी पढ़ाया था, उनके साथ भी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। इन दी एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी बहुत कुछ दिया, बहुत सपोर्ट मिला है। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से एमटेक में पावर इलेक्ट्रॉनिक कर रहा हूँ। थैंक यू। Mr. Uwais Sheikh from Electrical and Electronics Engineering. Mr. Ashish Yadav from Fire Technology and Engineering. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2006 में इंजीनियरिंग में आया था। मैंने अपने गुरुओं से ज्ञान भी पाया है और आज उन्हीं के साथ में काम करने का भी मौका मिला है। बहुत सारे मेरे टीचर्स अभी भी मेरे साथ हैं, जो अभी भी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मैं जब भी उन्हें मिलता हूँ, जब भी देखता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा बना रहे। थैंक यू वेरी मच। Mr. Manish Dubey from Fire Technology and Safety Engineering. Mr. Vineet Banoda from Fire Technology and Safety Engineering. Mr. Gaurav Anthony. Mr. Amir Sheikh from Fire Technology and Safety Engineering. Good afternoon to one and all. Respected Principal Ma'am, Honorable Dignitaries, Head of the Departments. I, Amir Sheikh, presently work as an Assistant Professor in Fire Technology and Safety Engineering Department. Admitted year is 2002. I just remember only one thing and one dialogue of Principal Madam. Sorry to say like that. इस सेम में तो तेरा सोम निकलेगा नहीं, अगले में भी ज़रूर नहीं निकलेगा। She shared like me, और it's my privilege to have such a great teacher and being a student. Yes ma'am. मैं निकल गया था, पहली बार में निकल गया था। पहली बार में निकल गया था। पहली बार में फर्स्ट टाइम आई गॉट मतलब मार्किंग सिस्टम होता है, आई गॉट 54 आउट ऑफ 70 मार्क्स। yes absolute grading. So thank you very much, and I got the support from my head of the department. उस टाइम फैकल्टी नहीं होती थी, पटेल सर थे, हो जाएगा। मैं जाता सर के पास कोई भी प्रॉब्लम लेके सब बोले हो जाएगा, बट मैडम इज स्ट्रिक्ट और आज भी मुझे डर लग रहा है मैडम से। Mr. Mustaqim Khan from Fire Technology and Safety Engineering. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको मैं एक बहुत छोटे से सेशन में एक ऐसा एंगल बताना चाहता हूँ जहाँ से आईपीएस एकेडमी पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहा है। सोचने में बड़ा अजीब लगेगा, पर वो एंगल ये है कि आईपीएस एकेडमी के जो एलुमिनाज हैं वो पूरे वर्ल्ड की जो फायर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स है उसको सर्व कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सोचने पर। मतलब इसका लेवल इतना हाई है कि आप यूके और यूएस के जो फायर इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं उनके जस्ट बाद हम काउंट करें तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर आपको फायर इंजीनियरिंग को सर्व करते हुए सिर्फ आईपीएस एकेडमी के एलुमिनाज ही दिखेंगे। आप किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, किसी भी फायर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम को देख लीजिए, हर जगह आईपीएस एकेडमी के पास आउट स्टूडेंट देखने को मिलेगा, इवन इन इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं मुस्तकीम खान 2008 to 2012 बैच का पास आउट स्टूडेंट हूँ और यही मेरे बारे में था। और इम्पोर्टेंस फायर इंजीनियरिंग की ये है वर्ल्ड वाइड। I request Professor Rajiv Shukla sir for a few words, please. मेरे ख्याल से आप लोग सबसे ज़्यादा मुझे याद रख पा रहे होंगे। बीच की बैचेस के लिए मैं यहाँ अवेलेबल था नहीं, बट देन दिस जर्नी हैज़ बीन फिनोमिनल। मैंने तो इस कॉलेज का एक तरह से जन्म होते देखा था। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो उस वक्त एक्टिव होते थे वो सजल था, शुभोजीत था। सर का लैपटॉप वो शुभोजीत ही ठीक किया करता था उस ज़माने में। सो इट वाज दोज वर फन डेज, सिंपल डेज थे, ना कोई लाग लपेट था, है ना। कभी भी प्लेसमेंट सेल तक आ जाओ,
है ना, मैं बोलूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में, उसको ठीक भी कर देते थे. सो दोज वेर सिंपल फन डेज एंड आई होप वो दिन, अब तो खैर स्टूडेंट्स की संख्या इंक्रीज़ हो गई है, बाकी सब कुछ हो गया है, बट देन आई स्टिल yearn for those days. Welcome you all and I hope we'll have a fun journey together. Thank you so much. Thank you, sir. Now I request Professor Arvind Upadhyay, sir, to come on the dais for vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, our dynamic principal Dr. Archana Kirti Chaudhary ma'am, our first director Dr. Ajil Alwani sir, advisor Dr. A.G. Kothari sir, various deans, head of the department, faculty members and most important esteemed alumni of this institute. समय थोड़ा सा कम है, लेकिन आप लोगों ने जो आज इतना अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आप आए और संस्था से आप पिछले 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं. हमारे एल्यूमिनी एसोसिएशन का उद्देश्य यही है, कनेक्ट टुडे ट्रांसफॉर्म टुमारो. इस विज़न के साथ हम लोग इस इंस्टीट्यूट के लिए एक अच्छे से काम करेंगे अंडर द विज़न ऑफ डॉक्टर अर्चना कीर्ति चौधरी मैम, जो इसके शिल्पकार जिसको बोलते हैं मूर्ति. जब हम बनाते हैं तो कैसे हम एक पत्थर को तराश के एक मूर्ति बनाते हैं, वैसे हम लोगों ने इस कॉलेज में, जब मैं भी 2000 का स्टूडेंट हूँ, तो जब हम लोगों ने देखा था कि कैसे इस कॉलेज में जहाँ फैसिलिटी नहीं थी, जैसे हमारे सीनियर्स ने भी बताया, तो आज हमारे पास सब कुछ है. हम NBA है, नेक है, ऑटोनॉमी है, हमारे पास क्या नहीं है. तो स्टूडेंट जो अपॉर्चुनिटी लेंगे, जितने हमारे सीनियर्स से कनेक्शन होगा, उतना हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा. सो थैंक यू. मैं फिर से आ गया थोड़ी देर के लिए, सीनियर्स के लिए ही आया हूँ. अरविंद सर के ही शब्दों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ. मैं कहना ये चाह रहा था कि एल्यूमिना एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया, और छोटे से उदाहरण से इसको ख़त्म करूँगा. 2012 तक इंस्टीट्यूट के अंदर डिपार्टमेंट्स चलते थे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग. धीरे से सिविल इंजीनियरिंग आया, केमिकल इंजीनियरिंग पिक्चर में आया. लेकिन 2012 तक फायर टेक्नोलॉजी, 2012 तक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसा चला सर. 2012 में जब प्रिंसिपल की कमांड हमारी अर्चना मैडम ने संभाली, तब थोड़ा सा ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये इंस्टीट्यूट है, ये डिपार्टमेंट वाइज यूनिट्स नहीं है, ऐसा सब कुछ समझ में आया. जब हम क्यूमुलेटिव हुए, साथ में जुड़े, और सबकी सोच, फायर की कुछ स्पेशलिटी जुड़ी, कंप्यूटर साइंस की उसके कुछ स्पेशलिटी जुड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ स्पेशलिटी जुड़ी, हमने वंडर्स किए. एक साथ NBA के 5 प्रोग्राम्स को चित कर दिया, चारों खाने चित कर दिया. इम्पॉसिबल था. कोठारी साहब बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा था 5 के 5 मिलने में मुश्किल पड़ेगी, पर हमने 5 के 5 NBA एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स को चित किया. उसके बाद फायर टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच, जिसमें NBA एक्रेडिटेशन का नाम नेशनल लेवल पर है ही नहीं, ब्रांच ही नहीं है उनकी लिस्ट के अंदर, उस ब्रांच में भी हमने 2019 के अंदर NBA एक्रेडिटेड पाया. कहने का तात्पर्य ये था टीम वर्क का. यदि हम भी सोचते एकला चलो वाली थीम पर, तो बड़ा मुश्किल होता सर हम लोगों के लिए भी. तो ये हो सकता है कोई सोचे कि मैं ही हूँ तो वो होगा, वही होगा. एक अकेला इंसान कुछ कर सकता है और बहुत सारे इंसान सब कुछ कर सकते. सब कुछ मतलब सब कुछ, जो सोचा वो पाया. उस तरह की थीम के साथ आज दिनांक को हम चल रहे हैं. एल्यूमिना एसोसिएशन में हम, श्रद्धा मैडम बैठी हुई हैं, हम चाह रहे हैं आपका सहयोग. किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को किन गहराइयों तक, किन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, ये आप हम लोगों से भली भांति और अच्छे से जानते हैं. तो आज दिनांक को जो एडवांस चल रहा है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हो, और दूसरी ट्रेडिशनल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में हो, हम चाहते हैं आपका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इस इंस्टीट्यूट को मिले, बीइंग मैग्नीफाइड और ग्लोरियस एल्यूमिना के रूप में. तो हम चाहते हैं यही लास्ट में आज थी. थैंक यू सो मच. Coming to an end of the program, I request all the alumni to please gather in the front for a group photograph.